चैप्टर है अल्काइल हलाइड्स। ठीक है। और मैं अपने फॉर्मेट में ऐसा करता हूँ, मतलब मैं पढ़ाता हूँ जिसमें फॉर्मेट में उसमें ये करता हूँ कि जनरली अल्काइल हलाइड एंड अराइल हलाइड जो है तो एक साथ आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह में दी रहेंगी। बट मैं अल्काइल हलाइड को अलग चैप्टर में पढ़ाता हूँ, और अलाइल हलाइड जो है एरोमेटिक वाले जब डिस्कस करता हूँ तो एरोमेटिक नॉर्मल बेंजीन पर रिएक्शन प्लस फेनॉल पे रिएक्शन प्लस अराइल हलाइड रिएक्शन, ये सारे एक साथ ही एरोमेटिक वाला एक अलग चैप्टर में पढ़ाता हूँ। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस को देखेंगे। अगले चैप्टर में सिर्फ अल्कोहल एंड नॉर्मल इथर्स के रिएक्शन देखेंगे। और उसके बाद अगले चैप्टर में हम सारा एरोमेटिक देखेंगे, सारे एरोमेटिक रिएक्शन, और उसके बाद कार्बोनल कंपाउंड्स एंड देन योर कार्बोक्सिलिक एंड अमाइड्स। सो टेक्स्ट बुक से अगर आप मैप करने जाएंगे तो प्रोबेबली लाइक आखिरी के 3 पेजेस या 4 पेजेस जो रहेंगे इस चैप्टर में, दैट इज 3 पेजेस के आसपास, दैट इज डिवोटेड टू अराइल हलाइड्स। वो वाला पार्ट इसमें फिलहाल हम कवर नहीं करेंगे, दैट विल बी कवर्ड इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। Next thing is like obviously introduction and physical properties, first part of the chapter. When one or more hydrogen of a hydrocarbon is replaced by halogen atom, it is referred as alkyl halide. A dihalogen substituted chain with halogen atoms on two consecutive carbon are referred as vicinal dihalide. And same पर अगर होता है तो geminal बोलते हैं। ठीक है। This is an example of vicinal dihalide, and this is an example of geminal dihalide. Is that okay? इसमें तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट वन इज boiling point and melting point of alkyl halides are higher than corresponding hydrocarbons. That is, alkyl halide will have a greater boiling point and melting point than alkynes, which will have in turn greater boiling and melting point than alkenes and greater than alkenes. Okay, so that is the general trend which is followed. Also, melting and boiling point increases with increasing molecular weight of alkyl group as well as halogen. So if I increase the molecular mass using extra number of carbons or different halogens, so in both the cases, it is going to increase with increasing molecular mass. Not only that, if I'm going to do multi-halogenation, the first halogenation will produce the least boiling or melting point. Subsequent halogenations are going to uh, give compounds which have higher boiling on and melting point in general, and this is primarily because of increasing mass. This is primarily because of increasing mass. Halides are slightly polar due to presence of halogen, so they are slightly soluble in water, whereas hydrocarbons were completely insoluble. Alkyl halides do not form hydrogen bonding with water and hence are not able to break hydrogen bonding of water and hence unable to form solution. Proper solution form नहीं करते हैं. However, they are slightly soluble in water. I mean, बहुत slightly soluble होते हैं. और proper solutions नहीं form कर पाते हैं. Making sense? Yeah, shape will matter. Shape का effect definitely हर जगह पे रहता है. Smaller the surface area, more will be the
melting and boiling point. Smaller the surface area, lower will be the melting and boiling point. That rule is always applicable in general. Is that okay? That means अगर हमारे alkyl chain पर बहुत सारा branching रहेगा, तो surface area is going to decrease and therefore it is expected to have higher melting and boiling point. Same halide, same बाकी सारी चीजें. If you are going to have more branching, your melting and boiling points are going to decrease. Is that okay? Their density increases with increasing halogen weight. ठीक है, RF से ज्यादा RCl, उससे ज्यादा RBr, उससे ज्यादा RI. एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है और इसमें बेसिकली H2O के साथ भी कंपैरिजन कर दिया है एग्जाम्पल में. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल. HF, HCl, sorry, CH3F, CH3Cl, CH2O, CH2O बोल रहा हूँ, H2O, CH3Br, CHI. The density increases from left to right. CH3F list followed by CH3Cl followed by H2O followed by CH3Br followed by CHI. नेक्स्ट, हैलोजन्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो मोनो हैलो डेरिवेटिव जो होगा दैट विल हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर, whereas dihalogen substituted alkane will have higher melting point than higher density than water, and subsequent things are going to have much higher density than water. Is that okay? The solubility of RS is maximum among any RX. So basically it follows the solubility order follows this rule. RF maximum soluble followed by RCl followed by RBr and then RI. It follows RF greater than RCl greater than RBr greater than RI. The different types of isomerism they can show. In general, they can show chain isomerism or positional isomerism. And with suitable chain configuration, they can also show stereoisomerism. So, अगर हमारे पास optical center बन पा रहा है कोई halogen की वजह से, ठीक है, नॉन सिमेट्रिक पोजीशंस पे अगर वो ऐड हो रहे हैं, then they are going to create stereoisomerism. Are we getting this point? फॉर एग्जाम्पल पेंटेन की अगर मैं बात करता हूँ या प्रोपेन की बात करूं, इस पर अगर यहां पर एक्स आता है तो इट विल नॉट बी स्टीरियोआइसोमर, इट कैन नॉट शो स्टीरियोआइसोमर्स. ठीक है, इसमें भी स्टीरियोआइसोमरिज्म. ब्यूटेन में देखते हैं, ब्यूटेन में अगर यहां रहता है तभी आइसोमेरिज्म रहेगा. ठीक है, साइड में रहेगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा. ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है इसलिए नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नहीं नहीं, वहां पे ये वाली चीज नहीं है. नहीं, वो कायरल नहीं है, दोनों तरफ CH3 है, यहाँ पर गलती से CH2 रह गया. एक CH3 और दूसरा CH3 तो कायरल नहीं है ना. पेंटेन में तो हमारे पास है ठीक है. तो पेंटेन में ऐसा होता है कि ये वाले पोजीशन पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं पहला या आखिरी, सो दैट विल बी नॉन कायरल, नो आइसोमेरिज्म.
इस पर करिएगा तो सिमेट्री की वजह से आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा, स्टीरियो। ये वाले पोजीशंस एप्ट होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के लिए। सो दो, सॉरी, एक स्टीरियो, दो स्टीरियो आइसोमर्स डीएनएल आपको मिल सकता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? So it is going to be a case specific decision rather than a generic one. Making sense? Yeah, you can. I mean, that's not a big deal. Correlated होना बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए हम लोगों के लिए. We have done a lot. So yes, you can. Substitution कहाँ पे हो रहा है उसके हिसाब से हम जज करके निकाल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हाइलाइट्स जो होते हैं हम लोगों को जो पढ़ने हैं, जानने हैं, वो जनरली मोनोहालाइट्स एंड डाइहालाइट्स, ये दो के बारे में हम लोग को जानना होता है. प्राइमरली मोनोहालाइट्स रहते हैं, बट डाइहालाइट्स के भी कुछ रिएक्शंस हम लोग को देखने या जानने हैं. सो मोनोहालाइट्स एंड डाइहालाइट्स दोनों के प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग देखेंगे. अब डाई में भी ऐसा होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑन सेम कार्बन और सब्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट, और अटैचमेंट ऑफ हलाइड ऑन सेम कार्बन एंड अटैचमेंट ऑफ हलाइड ऑन डिफरेंट कार्बन. सो जेमिनल एंड बेसिल, इन दोनों के प्रोसेसेस अलग अलग होंगे. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर देम एज एट द एंड. एट द एंड मतलब बी और सी में सीखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. फ्रॉम अल्केन, in case of alkenes, we have free radical substitution reactions taking place. RH X2 के प्रेजेंस में, X2 and H के प्रेजेंस में, और हाई टेम्परेचर, ठीक है, up to 500-600 degrees Celsius, we will have RX being formed and HX being formed. Reactivity rate happens to be F2 सबसे fast react करता है, followed by Cl2, followed by Br2, and then I2. फर्दर 3 डिग्री का रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 1 डिग्री. ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री. फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से. ठीक है, ये बात समझ में आई? और alkane to alkyl halide we used H, and now for reverse we are using halogen. Yes, obviously. For alkyl, sorry, for alkyl halide to ये एच नहीं यूज करते. एच कैसे डायरेक्टली यूज करोगे? हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह यूज करते हैं. फॉर व्हाट? अल्केन टू अल्काइल हैलाइड. HCl नहीं बेटा, H तो प्लस रहेगा ना HCl का. सर और सर ये यहाँ, बात वापस एक बार बताओ ना, आप जो भी बता रहे थे फ्रॉम अल्केन्स से। हाँ, फ्रॉम अल्केन में, अल्केन से X2 एंड HNO के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर होता है. X2 HNO के प्रेजेंस में रेडिकल्स में ब्रेक करता है और वो H को निकालता है. R का रेडिकल बनता है, R के रेडिकल के साथ X का रेडिकल इंटरेक्ट करके RX बनाता है. रिएक्टिविटी रेट का ऑर्डर F2, Cl2, Br2 एंड I2. सबसे फास्ट ये करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये. हाँ अल्केन्स सर। के, अल्केन्स में 3 डिग्री फास्टेस्ट, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. To limit the reaction to monohalogenation. नहीं, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ. फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल.
ठीक है, 3 डिग्री फास्टेस्ट होता है, 2 डिग्री उसके बाद एक। सर सॉरी, वी यूज दिस एग्जैक्ट रिएक्शन फॉर एल्काइल। हाँ, वी यूज सेम रिएक्शन। दूसरा कैसे करेंगे, वो ये HCl वगैरह अल्कीन के साथ करते हैं। अल अल्काइल हलाइड से अगर हमें अल्केन बनाना है। हेलो, हेलो। सी, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारा हलाइड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में है, मतलब जितना ये है मेरा अल्केन का क्वांटिटी जो है, उसके कंपैरिजन में हलाइड अगर या हैलोजन अगर सब्सटेंसिव अमाउंट में, जैसे 5 मोल RH का लिया हमने अल्केन, और 2 मोल या 3 मोल के आसपास हमने X2 ले लिया, ठीक है, तो दे आर इन कंपेरेबल जोन। नहीं नहीं, फ्लोरीन से भी होता है, बट रिएक्शन काफी वायलेंट होता है, इसकी वजह से हम उसको जनरली यूज नहीं करते हैं। F2 से होता है, बट इट इज वेरी वायलेंट। हेलो। हाँ सर। है कि अगर हमारा RH और X2 दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब कंपेरेबल है, बेसिकली नॉट प्रोपोर्शनल, द राइट वर्ड इज कंपेरेबल इन अमाउंट, that is in terms of moles, so then we have possibility of multi halogenation rather than monohalogenation। ठीक है, आइडिया ये होता है कि X2 जब ब्रेक कर रहा है HNO के प्रेजेंस में, तो उसके विसिनिटी में क्या है, उसके विसिनिटी में हर बार अगर एक नया RH मिलेगा, तो वो हमेशा मोनोहैलोजिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाता रहेगा। जैसे ही एक X2 के बाजू में जब वो ब्रेक कर रहा है, उसके बाजू में या मतलब विसिनिटी में अगर कोई ऑलरेडी RX कंटेनिंग एंटिटी प्रेजेंट है, तो वो इमीडिएटली RX2 बनाना चालू करेगा। बात समझ में आ रही है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन चालू करेगा। सो इन ऑर्डर टू लिमिट दैट, दैट इज मल्टी हैलोजिनेशन को लिमिट करने के लिए, RH को हम लोग लार्जर एक्सेस में लेते हैं, लार्ज एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज टेकन इन लार्ज एक्सेस। सर अगर नहीं गया तो क्या होगा? हाँ, अगर नहीं किया आपने, तो व्हाट विल हैपन इज, जैसे CH3, CH2, CH3 है, इथेन, X ब्रेक हुआ, X डॉट बन गया, ये एक हाइड्रोजन को निकाल करके और CH3 CH2 X बना लिया। अब अगला वाला जो X टूट रहा है, ठीक है, अगर ये चीज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कंपेरेबल है, तो इसके विसिनिटी में इसका प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी, तो ये फिर यहां से हाइड्रोजन निकाल के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, या यहां से कहीं भी एक जगह पर, बट मोनो के अच्छा। बदले डाई और डाई। मल्टी मल्टी हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स हमको मिलने लगेंगे। ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा रहेगा, तो द चांसेस ऑफ finding this in vicinity of any of X2, ठीक है, that is going to be pretty less, so मल्टी हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती। बात समझ में आ रही है? यस। सारे मोनो हैलोजिनेटेड रहेंगे, मल्टी हैलोजिनेटेड हार्डली हमको मिलेंगे। Therefore, alkene is taken in large excess always, so that we can have effective reactions, effective monohalogenation। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा,
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ CH3 CH2 CH3, 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है, राइट। क्लोरीन से अगर हम कर रहे हैं तो क्लोरीन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को लेकर के 1:3:0.8:5 होता है, वहां पे लिखवाया हुआ है मैंने। ब्रोमीन के लिए बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होता है, 1:84:, आई थिंक 1600 होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री 6 है, सो बेसिकली 6 यूनिट्स ये बनेगा और 10 यूनिट्स ये बनने लगेगा 2 डिग्री वाला क्लोरीन के साथ। टोटल 16 बन रहे हैं, ठीक है। 6 out of 16 इज गोइंग टू बी 75/2, दैट इज 37%। सो 1 डिग्री वाला जो बनेगा उसका 1 डिग्री मतलब CH3 CH2 एंड CH2X, इसका परसेंटेज 37.5% रहेगा। और दूसरे वाले का यानी CH3 CHX एंड CH2, इसका परसेंट 67 पॉइंट और सॉरी 62.5% रहेगा। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? यस। ओके। ब्रोमीन के लिए इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, अगर 3rd डिग्री या 2 डिग्री की है तो ठीक है, 2 डिग्री में भी बायसनेस बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। सो स्टिल वी आर गोइंग टू हैव दिस। अच्छा, 5 नहीं होगा यहाँ पर, इट विल बी 7.6, सॉरी। However, the idea is going to be same. 6 plus 7.3, 16.3, 6 upon 16, 13.6 into 100. That will be the percentage, not this one. ये गलत हो गया, ये 5 नहीं होगा, 2 डिग्री है तो 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? 3 डिग्री होता तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करें। मेकिंग सेंस? यस। ओके। For alkane higher than propane, we will get mixture of different alkyl halides, ठीक है। मोनोहैलोजिनेटेड रहेंगे बट डिफरेंट जगह पे सब्स्टिट्यूशन रहेगी। सो दिस डजंट बिकम अ वेरी प्रिसाइज मेथड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर हलाइड, ठीक है। मतलब इंसर्शन हमारे हिसाब से नहीं होता है, दैट बिकम्स रैंडम इंसर्शन एज ए सब्स्टिट्यूशन जो होता है, दैट बिकम्स अ रैंडम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से प्रिपरेशन जो होता है, that is HX in CCl4. This happens to be electrophilic addition. It forms monohalogenated product. Due to formation of carbocation as an intermediate, we have possibility of rearrangement in case of classical carbocations, or else no rearrangement in case of non-classical carbocation, ठीक है। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन तो HX अगर यूज कर रहे हैं तो बनेगा ही नहीं। सो ये वाला पॉइंट यहाँ के लिए स्पेशली इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पर सारी चीजें क्लासिकल कार्बोकेटायन से ही बनी। बात समझ में आ रही है? एंड चूंकि क्लासिकल कार्बोकेटायन से बनेगा तो वी विल हैव पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। क्लियर है? और एनी डाउट? क्लियर।
बैक टू डिस्कशन। सो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि क्लासिकल कार्बोकैटायन ही इस केस में बनेगा और कुछ बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और चूंकि मोनो हैलोजिनेशन ही देख रहे हैं हम लोग, डाई हैलोजिनेशन का केस नहीं कंसिडर कर रहे हैं। डाई हैलोजिनेशन में X2 यूज करेंगे जिसमें हमारे पास क्लासिकल नॉन क्लासिकल की अपॉर्चुनिटी रहेगी, यहाँ पर नॉन क्लासिकल की अपॉर्चुनिटी नहीं। ठीक है। और इसके में भी हम लोग चाहिए तो एडिशन, एक काम करते, एक छोटा सा काम कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, आप लोगों को दो चीजें सॉल्व करने के लिए देता हूँ। ठीक है, let us solve this and try to see what we are getting as a product. Carbon, carbon, CH3, H, CH3, H, and HCl, NCCl4। ठीक है। और यहाँ पे भी CH3, H and H, and you have to disperse the product at stereo level, CCl4। यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कैन यू गाइस एक डू मिनट इट? इसके पहले का दिखाओ ना, जहाँ पे आपने इसका मेन रिएक्शन बताया मैं नहीं था। हाँ, एल्कीन्स मेन। हम्म। अच्छा, वो ऐड हो जाता है। हम्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हम्म। कैन वी डू दिस क्विकली? तो अभी इसमें क्या करना है? एक इधर से आएगा और दूसरा इधर से आएगा, चार अलग अलग चीजें। हम्म। ये एक कौन सेकंड से? सर, कौन कौन सा है ये बताओ मेरे को हाँ, ठीक। वो डिसाइड कर लेते हैं अपन लोग। सो ऊपर वाला ये Cl। दोनों जो है ये प्लेन में है, तो एक को हम बना देते हैं हाइड्रोजन। सर ये आपकी ये शे बंद करो ना, मुझे वो स्क्रीन बहुत ही छोटी दिख रही है। नहीं, हो गया हो गया हो गया, दिख रहा है अभी। हाइड्रोजन। सर बट एक प्रॉब्लम है सर, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है मुझे। कैमरा नहीं दिख रहा है मतलब? तो मतलब क्या हो रहा है उस पे? ठीक है, स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, अभी दिख रहा है पूरा हाँ हाँ अभी दिख क्लियर है? रहा है। हाँ यस। ओके, तो दिस इज माय हाइड्रोजन, हाँ। हाँ। दिस इज CH3, यस। ये वाला Cl, हम्म। और ये वाला C2H5, सर एक या सेकंड में सी नोटेशन टू C2H5 देख रहा नहीं, हूँ, वापस बताओ ना। एच फोर सी एल C2H4Cl। हाँ बोलो। वो लेफ्ट वाला, आपके ये राइट वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ओके, हाँ डन डन। ये CHCl, CH3, that is तो C2HCl। मार्कर वाला, हाँ मार्कर मार्कर वाला वाला सी टू एच सी फोर टू सी एल है एच ना? सी एल और ये जो है, ठीक है, दिस इज Cl। ठीक है, HCH3, HCH3, marker is CHCl, that is C2H4Cl, and this हाँ is Cl। ठीक क्लोरीन। है, या अब मुझे देखना है क्या है ये, तो मैं क्या करूंगा, I'll create
like this, and we'll read it. Oh, Hydrogen C2H4Cl, and this is CH3. Cl, C2H4Cl, and CH3. 1, 2, and 3. This is coming out clockwise to me, and clockwise. हाँ क्लॉकवाइज टू मी, ये आर हो गया। आर आप या लोग अब देखोगे इसको तो ये आपको आर दिखेगा। हाँ ठीक है, हम्म, वेरी गुड। अब ये एक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगेन हमारे पास इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा, चूंकि एंटी एडिशन हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, देयर विल बी, ये हम लोग कर रहे थे ट्रांस वाले पे एडिशन, राइट। यस ट्रांस एडिशन कर रहे हो तो इस कार्बन पे यू विल हैव सी, यहां पर CH3 इस तरफ है, ठीक है। तो यहां पर CH3 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे। थोड़ा ऊपर करो ना वो, ऊपर ऊपर। हाँ बस। इज दिस ओके? हम्म, और इधर हमारा H आएगा, हाँ, क्लियर है। क्लोरीन CH3, अपोजिट है। CH3, हाँ यस क्लियर है H, और Cl यहां पर हाँ CH3, H, और Cl। हाँ अब आप इसको रोटेट कर रहे हो, राइट। हाँ तो Cl ऊपर आ गया, CH3 जो इधर था वो इधर चला गया, और ये जो था वो इधर आ गया। ओके, बोथ आर कमिंग आउट टू बी आर आर, एंड दूसरे वाले केस में इट इज गोइंग टू बी एस एस। ठीक है, यस। यस सर समझा ये मतलब हाँ और आर आर और एस एस क्या होंगे, दोनों दोनों सेंटर पे अगर आर आर है, राइट रोटेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, दिस थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी, एक आर और एक एस रोटेट करेगा तो, नहीं एक सेकंड रुक जाओ। सीएल नीचे था, ऊपर लेकर के आया, ट्रांस है। इंटरनल सिमेट्री हो रही है इसमें, सो इंटरनल सिमेट्री हो रही है तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर बोल रहा हूँ यार, मेसो मेसो कंपाउंड। कंपाउंड। दिस इज गोइंग टू बी अ मेसो मेसो कंपाउंड कंपाउंड। या सर वही ठीक है। सब वही सुपर इंटर इम्पोज हो रहा है इसका ना हाँ, सुपर इम्पोज हो रहा है तो रेसिमिक कंपाउंड होगा, ये सुपर इम्पोज हो रहा है और ये रेसिमिक कंपाउंड होगा। मेसो मेसो सॉरी, मेसो कंपाउंड होगा, हाँ मेसो होगा। ठीक है, सर तो हाँ मुझे बोलो। मैंने मतलब यही आंसर दिया था, क्या अलग किया था कुछ? नहीं, यही आंसर दिया था तुमने। हाँ सर मैंने भी वही मेसो ही बोला था नीचे वाला बट बिल्कुल, सर गुड। इंटरनल सिमेट्री एंड मेसो कंपाउंड, ठीक है, हाँ यस वेरी गुड। आगे बढ़िए, इसमें क्या बनेगा। सर कौन सा ऊपर वाला हाँ, सर इसमें रेसमेंट बनेगा। इसमें रेसिमिक बनेगा, एक सेंटर आर रहेगा, दूसरा सेंटर एस रहेगा, और दूसरे वाले हाँ में भी नमूने ऐसा में ही रहेगा, आर एस रहेगा यस आर एस रहेगा। हम्म ये में भी एस हाँ रहेगा और ये वाला आर रहेगा। हाँ आर एस आर बनेगा। आर एस यस ठीक है, यस सर एंड दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी रेसमिक रेसिमिक। ठीक है, हाँ ओके। अब यस सर इसमें एक चेंज कर देते हैं, सॉरी,
एक ही चेंज करना था, दो हो गया, एक ही करता हूँ यहाँ पे मैं H के बदले, सॉरी, CH3 के बदले आई मे पुट, से फॉर एग्जांपल मैं Br पुट कर देता हूँ, ठीक है। और यहां पर भी मैं Br पुट कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड CH3 H Br एंड H, सॉरी, Br नीचे और ऊपर H. Now what will happen to us? Our product